ओके, सो विटामिन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम. Like one vitamin is very important, that is B12. Okay, B12, that means cyanocobalamin. It is very important for our gut health, for our digestion. Okay, so we have to make sure it is in our diet. So vitamin B12 is mixture of several related compounds, all of which contain and traces element cobalt. Vitamin B is cobalamin is a unique vitamin in human nutrition. Okay, since its malabsorption, like अगर ये अच्छे से absorption नहीं होगा, okay, malabsorption होगा, तो leads to the fatal syndrome of pernicious and megaloblastic anemia. It is a type of anemia. There are three types of anemia. So one is iron deficiency. Second, this is megaloblastic anemia. अगर ये वाला anemia होता है तो इसको pernicious भी बोलते हैं. और इसमें क्या होता है, आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है बॉडी. ठीक है, और इससे क्या होता है, जो माइलिन शीट होती है, एक माइलिन शीट होती है ब्रेन में, उसमें लेजन्स आ जाते हैं, तो नर्वस सिस्टम में बैड इफेक्ट होता है. ओके, सो विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर nervous system also. Food sources of cyanocobalamin. Cyanocobalamin कहाँ से मिलेगा? Vitamin B12 is unique among vitamins in the sense that it is mostly found in. Yes. Today I suffer from that same vitamin B12 deficiency. Okay. So who is there, Dr. Neetu? They admitted me in a hospital because of vitamin B12 deficiency. No. This is I am. Jay speaking with you. Dr. Jay speaking. I'm logging on the other laptop. Okay. Oh, you are admitted right now? Yes, ma'am. Vitamin B12 deficiency, pituitary glands are not working, so my vision is blur. Oh my God. Oh, this is, see, the optic nerve is I think affected. The nervous system is related in this, no? So optic nerve may be related in this. उसको effect हुआ है, that's why your optic system is hampered. Like all nerves is associated with all your organs. So जहाँ पे भी nerve, सारे body parts में nerve का function होता ही है, like hands में, legs में. अगर nerve भी वहाँ का खराब हुआ तो आपका वो पार्ट फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली. आपका लेंसेस तो ठीक है, मगर ऑप्टिक नर्व अगर खराब होगा, यू कैन सी दैट, यू कैन रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर सीइंग. ओके, सो मे बी दैट इज अफेक्टेड. सो इट इज फॉर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12. And food and animal organ. In many animal, gastrointestinal fermentation supports the growth of these vitamin B12. Okay, पेट में जाके, गैस्ट्रिक रीजन में जाके जो फर्मेंटेशन होता है, वहां पे खाना जो फर्मेंट होता है, जैसे हम बाहर में भी फूड फर्मेंट करते हैं, राइट? इडली को या फिर राइस का बैटर को या फिर जो हमारा ढोकला का बैटर होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं, राइट? उसमें ईस्ट ग्रो करते हैं. वैसे हमारा पेट में जाके भी फूड फर्मेंट होता है डाइजेस्ट होने के लिए. तो दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस. फर्मेंटेशन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ दिस विटामिन B12. और पेट में जाके जब वो फर्मेंट होता है तब जाके विटामिन B12 सिंथेसाइज होता है, बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. and subsequently the vitamin B is absorbed and incorporated into the animal tissue. और इस तरह से फिर एनिमल टिश्यू में जाके इनकॉर्पोरेट होता है, जुड़ता है, ओके, टिश्यू में.
सो अगर पेट में अच्छे से बैक्टीरिया नहीं होगा, मेनली कौन फर्मेंट कर रहा है? बैक्टीरिया पेट का। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो फर्मेंट नहीं करेगा फूड को और फिर विटामिन B12 नहीं बनेगा। This is particularly true for the liver, where vitamin B is stored in large concentration. Products from herbivorous animals such as milk, meat, and eggs thus constitutes important dietary sources of the vitamin. Humans therefore derive dietary B12 almost exclusively from animal tissue or products. लाइक एनिमल और एनिमल का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट, फिश या फिर मिल्क प्रोडक्ट, दे आर एनिमल प्रोडक्ट जो एनिमल के सोर्स से आते हैं। तो हमें यहाँ से इजीली एनिमल सोर्स से हमें B12 मिल जाता है। ओके, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन कितना होगा, स्टोरेज कितना होगा एंड एलिमिनेट कितना होगा। Vitamin D in food is bound to proteins and is also released by the action of a high concentration of hydrochloric acid present in the stomach. मैंने पहले बताया है ना आपको डाइजेशन पढ़ते समय कि पेट में HCl सीक्रेट होता है, राइट? तो HCl जो सीक्रेट होता है that is hydrochloric acid. Once released from food, vitamin B12 absorption involves contact with two proteins, intrinsic factor and R binder. Vitamin B12 is the only B vitamin our body can store. और जितना भी विटामिन है मैंने बोला है क्या, वो एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल। तो हम वाटर के थ्रू निकाल देते हैं। दे आर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी एंड विटामिन बी। ओके, तो विटामिन बी में एक ऐसा एक्सेप्शन है, विटामिन B12, विच वी कैन स्टोर इन आवर बॉडी। ओके, the average adult body contain 2 to 5 mg of vitamin B12 with 80% of this stored in the liver. ओके, जो लाइक एनिमल फूड खाते हैं लाइक मीट, फिश, चिकन, तो अगर वो लिवर ऑर्गन भी खाएंगे एनिमल का तो वहां से भी उनको फैट प्लस विटामिन B12 मिलेगा, बिकॉज एनिमल का भी जो बॉडी है उनका लिवर में B12 स्टोर हो जाता है। तो जनरली जो नॉन वेजिटेरियन है उनको हम रेकमेंड करते हैं कि आप नॉन वेज फूड खाएं, तो जिससे इजीली उनको B12 मिल जाता है। बट वेजिटेरियन आल्सो कैन इंक्रीज देयर विटामिन B कॉन्सेंट्रेशन बाय ईटिंग गुड डाइट, जिससे उनका गट हेल्थ रहे, गट का जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, एंड पेट में ही फर्मेंटेशन होके पेट में ही विटामिन B12 फॉर्म हो। एंड if they eat curd in their diet, तो क्या होगा, उनका पेट का जो बैक्टीरिया है, हेल्थी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, वो अच्छा रहेगा और दे इट लाइक मेक विटामिन B12 in the body due to making fermentation of food. अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, that means they may be lacking of vitamin B12. The function of cyanocobalamin R, इनके functions क्या है B12 के? It promotes the malnutrition of erythroid cells. Okay, it acts on other bone marrow, eliminates and increase WBC and platelet count. Okay, क्या होता है बोन मैरो? बोन मैरो एक ऐसे सेल्स है हमारे बोन के अंदर जो हमारा ब्लड को फॉर्म करते हैं। They reproduce blood in our body. Okay, तो ब्लड में क्या है? RBC, WBC दोनों है। तो WBC प्लेटलेट एंड RBC ये तीनों ही कंपोनेंट हैं। तो WBC को बनाने में कौन काम कर रहा है? बोन मैरो। और बोन मैरो को कौन हेल्प कर रहा है? साइनोकोबालामिन, दैट इज विटामिन B12। तो अगर हमें फाइट करना है इन्फेक्शन से, सो वी हैव टू टेक vitamin B12 in sufficient amount.
और वी हैव टू मेक लाइक गुड गट हेल्थ, जिससे हमारा बॉडी में फूड फर्मेंटेशन अच्छे से हो, अच्छे से डाइजेस्ट हो एंड B12 अच्छे से रहे. It stimulates the appetite and general health of the subject. It cures neurological symptoms और pernicious anemia. क्या करता है pernicious anemia? हमने जो पहले पढ़ा कि एब्जॉर्ब ही नहीं होता है आयरन फूड में, ठीक है. It is involved in the malnutrition. What is this? It is involved in the मैन्युफैक्चर ऑफ माइलिन. ओके, माइलिन शीथ हमने पहले भी पढ़ा है. माइलिन शीथ जो होता है नर्वस सिस्टम का, उसको ये मैन्युफैक्चर करता है. अ फैटी लेयर विच इंसुलेट्स नर्व्स. एक फैटी माइलिन शीथ क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ फैटी लेयर जो कि इंसुलेट करता है नर्व्स को, ठीक है. It is necessary for production of nucleic acid, which makes up DNA and genetic material of the cell. Okay, it functions. What is DNA? DNA is a kind of thing which carries our hereditary material from our parent to us and to us to our young ones. It functions as a coenzyme of or for enzymes. coenzyme मतलब जो एंजाइम के साथ मिलके काम करे, हेल्प करे, ठीक है. methionine synthesis and methionine synthesis. What is methionine? Methionine is a type of essential amino acids, ठीक है. जब हमने पढ़ा था essential amino acid मिल पार्ट टीवी, तो उसमें ये था methionine. methionine synthesis में भी ये हेल्प करता है. recommended dietary allowances. RDA कितना बोलता है इसको खाने के लिए? ओके, विटामिन B12 deficiency is common in true vegans. vegans में क्यों? Because they take no animal food, like they don't take milk, cheese, paneer, कर्ड इवन. सो उनको एनिमल सोर्स से कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इसीलिए उनमें विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है. Who can be treated with small doses since the daily requirement is only 1 gram per day recommendation for B12 for all age group. However, the requirement do increase in lactation, ठीक है, by 0.5 gram. एक नॉर्मल पर्सन में कितना होगा? 1 ग्राम पर डे. हर रोज 1 ग्राम खाना होगा, लेकिन जब कोई एक लेडी जब प्रेग्नेंट होगी तो उसको 1.5 ग्राम खाना होगा, एडिशनली 5.5 ग्राम पर डे. बिकॉज क्यों? क्योंकि उसके अंदर में बेबी होगा, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें भी ये हेल्प करेगा. सो माइलिन शीथ के लिए तो जरूरी है एक मदर का, लाइक नॉट मदर, एक प्रेग्नेंट वुमेन का गुड डाइट खाना उसके बच्चे का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में लाइक 90% रोल है. अगर उसका डाइट अच्छा नहीं होगा तो बच्चा लाइक न्यूरोलॉजिकल वीक हो सकता है. अगर मदर की डाइट बहुत अच्छी है तो 90% चांसेस है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका स्किल बहुत अच्छा होगा. तो मेक श्योर कि जो भी मदर है उनकी डाइट पे जरूर ध्यान दिया जाए. मदर प्रेग्नेंट वुमेन टिल लैक्टेटिंग मदर, जब तक वो लैक्टेशन पीरियड में है तभी भी उनको अच्छा खाना देना है, जिससे कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है. जो रिस्ट्रिक्टेड चीजें हैं लाइक MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो नहीं देना है, मदर को नहीं खाना है. दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर बेबी एंड मदर टू. आजकल में ज्यादातर केसेस क्या देखने मिल रहे हैं? GDM बहुत हो रहा है. जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें डायबिटीज के केसेस बहुत कॉमन हो गया है. तो उसी टाइम से हमें शुगर कंट्रोल करना है, एक अच्छी डाइट देनी है.
ताकि बच्चे जो है उनका जब होने वाला जो बच्चा है उसमें डायबिटीज के चांसेस ना हो आगे चल के। और जब एक प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअली जीडीएम केस में आ जाती है तो उसके चांसेस बन जाते हैं आगे चल के वो डायबिटीज होने का। तो जो जीडीएम जिनको हो चुका है, जीडीएम दैट मीन्स gestational diabetes mellitus, it is a kind of condition in which pregnant woman is diabetic but डिलीवरी के बाद वो उनका नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना वेट कंट्रोल नहीं रखेंगे, वेट गेन ज्यादा होगा, डाइट बहुत खराब होगी, तो उनका आगे भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, ठीक है। और अगर जीडीएम है किसी मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को, एंड उसकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है, जब तक उनकी नॉर्मल हम नहीं करते हैं उनका ब्लड शुगर, तब तक वो डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। और बेबी के भी मेंटल ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर जो भी मदर है उनका शुगर लेवल जरूर चेक हो एंड उनका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। So here vitamin B12 is also important in these things. And toxicity क्या मतलब, अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे, एक्सेस खा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यही ज्यादा हो जाएगा एंड ये पॉइजनस हो जाएगा। इनटेक ऑफ 1000 mg, that will be mg, okay, mg vitamin B12 has never been reported to have any side effects. अगर 100 mg भी खाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। Similar large amount have been used in some preparation in nutritional supplement without apparent ill effect. इसका कोई वैसा हमने सप्लीमेंट का भी बहुत इल इफेक्ट नहीं देखा है, तो टॉक्सिसिटी के केस में इट इज सेफ। नाउ विटामिन B9, ये उतना सुनने में नहीं आता है डिजीजेस के रोल में, मगर B12 का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओके। Folic acid or folate has several, folic acid and folate is iron, kind of iron, okay, has several function including its action with vitamin B12 in rapidly divided cell. Folate is a generic term which include naturally occurring food. Folate and folic acid is supplement and fortified food. The term folic acid relates specially to the fully oxidized monoglutamate, okay, form of vitamin synthesized for commercial use and supplements and fortified food. Mothers को आप देखते होंगे folate and folic acids दिया जाता है। And sources क्या है folic acid के? Folate occurs naturally in foods. Although folate is found in wide variety of food, it present in relatively low density except in liver. Diet that contain adequate amount of fresh green vegetable will be good folate source. Folate derived from animal product is subject to loss during cooking. Some staples such as white rice are low in folate. Why here is written staples? Because India में rice is staple food. इंडिया में हम राइस को ही बार बार खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे फोलेट लिखा है, लाइक मोस्टली इन साउथ इंडिया एंड some parts of North India too. Sources are liver, dried yeast, leafy vegetable, wheat germ. Wheat germ क्या होता है? जब हम whole wheat को देखेंगे तो उसमें हमें wheat germ मिलता है, and rice polishing. Good sources: whole cereals, dried legumes. Pulses have twice as much folic acid as cereals. Cereals से ज़्यादा pulses में होता है, like दालों में. Nut, fresh oranges, green leafy vegetable. Fair sources ठीक ठाक किस में मिलेगा? Millet cereals, milled cereals, other vegetable, milk and fruits. Absorption, storage and elimination. इसका absorption कहाँ होता है? Folic acid is readily absorbed from the small intestine, okay,
through the portal vein and passed into the tissues through general circulation. जैसे ही जनरल सर्कुलेशन में पास हो जाता है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? इंटेस्टाइन के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन. मोस्टली सारा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ही होता है. Following absorption, folic acid is largely reduced and methylated in the liver. Folate transport across members, it is cell in kidney, placenta and choroid plexus occurs via membrane associated folate. Placenta क्या होता है? Placenta is a thing जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है. ठीक है. Folate binding protein that act as folate receptors and facilitate circular uptake of folate. फंक्शन क्या है? क्यों खाना है हमें फोलिक एसिड? जब हम कुछ भी खाते हैं, लाइक प्रोटीन्स खाते हैं, तो उसको क्या करना होता है? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होना होता है. तो अगर हम फोलेट, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे लाइक दूसरे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो दूसरे के कॉम्बिनेशन, दूसरे न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन से ही वो एब्जॉर्ब होंगे या ब्रेक डाउन होंगे या एब्जॉर्ब के लायक बनेंगे. तो यहाँ पे फोलेट का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में. ओके, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है प्यूरिन्स में एंड प्यूरिन के बाद अमीनो एसिड्स में. हार्ट डिजीज रिस्क को भी ये कम करता है. ओके, स्ट्रोक बाय लोअरिंग लेवल ऑफ द अमीनो एसिड होमोसिस्टाइन इन द ब्लड. Folate is essential for the nervous system. अगर डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा? न्यूरोपैथी होगा. लाइक न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीजेस, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज होंगे उनको हम न्यूरोपैथी के अंदर बोलते हैं. इट इज अ डिजीज अटैक्सिया. अटैक्सिया में क्या होता है? हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं. जैसे किसी ने कुछ बोला एंड दूसरे ने कुछ और बोला, तो हम दोनों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते. उसने ऐसा बोला तो इसीलिए शायद उसने ऐसा बोला. दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन. ओके, या फिर बच्चों में आप देखेंगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, तो उनको प्रैक्टिस कराने के लिए हम बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं ना, एंड लाइक जिगजैग पजल्स देते हैं ताकि उनको कोऑर्डिनेट करना है. एक पजल से दूसरे पजल को कैसे ऐड करना है, कैसे अटैच करना है. तो ये कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो प्ले करता है फोलेट. अगर फोलेट डिफिशिएंट होगा, अगर मदर भी प्रेगनेंसी के टाइम, अगर प्रेग्नेंट वुमेन फोलेट डिफिशिएंट है, तो डेफिनेटली बेबी फोलेट डिफिशिएंट होगा ही, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ में उसको आयरन का कुछ भी सप्लीमेंट नहीं मिलता है. ओके, तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन का जो लेवल है, वो बाकी बच्चों के जैसा नहीं होगा. Folate is also important for pregnant women. Okay. Low blood level of folate during pregnancy can cause neural tube defects. ट्यूब के डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो जहाँ पे क्लोजर होना चाहिए वहां नहीं होगा, कहीं और पे क्लोजर हो जाएगा. द डिफेक्ट इन द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस एंड पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट है. एंड अगर फोलेट डिफिशिएंट होगा तो हाइड्रोसेफेलस करके एक डिजीज होता है जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है. लाइक बच्चा रिएक्ट नहीं करता इमीडिएट. अगर कहीं पे कुछ उसको बहुत ज्यादा अगर डिफिशिएंट हुआ, उस केस में बच्चे को जैसे थोड़ा सा चुटी काटा तो काफी देर से रिएक्ट करना या उसको समझ नहीं आना,
तो ये सब चीजें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स बच्चे में आ जाती हैं. The dependency of methionine synthesis on both folate. Methionine is also kind of amino acid, kind of protein. Okay, synthesis on both folate and cobalamin explains why a single deficiency of either vitamin leads to a same megaloblastic changes in the bone marrow. ओके, बोन मैरो जो होता है, जो सेल्स, न्यू सेल्स बनाता है, ब्लड के नए ब्लड सेल्स बनाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है. वो गुड क्वालिटी के सेल्स नहीं बनाता है. और इतनी जल्दी वो डिवाइड भी नहीं होता है. लाइक अच्छा हेल्दी ब्लड लेवल बनाने के लिए गुड अमाउंट ऑफ WBC होना चाहिए, RBC होना चाहिए, प्लेटलेट होना चाहिए. वो कब बनेगा? जब वो डिवाइड होते रहेंगे, न्यू सेल बनते रहेंगे. तो उसमें भी कमी आ जाती है. दे डिवाइड वेरी लाइक लो स्पीड, रैपिडली नहीं होता है. So what is RDA for that? The individual requirement of folate for both the sexes, like male female के लिए बोला गया है यहाँ पे recommended by 100 microgram per day. दोनों को ही सेम है, मेल फीमेल को 100 ग्राम पर डे. बट प्रेगनेंसी में एंड लैक्टेशन में वो बढ़ जाता है 400 ग्राम टू 400 एंड 150 रिस्पेक्टिवली. 400 बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, एंड जब बच्चा का बॉर्न हो गया, जब अब कुछ डेवलपमेंट नहीं करना है बॉडी के अंदर, तब सिर्फ 150 प्लस होगा. मतलब 100 एक नॉर्मल वुमेन में, 500 हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा आपका प्रेग्नेंट वुमेन में, एंड 150 हो जाएगा लैक्टेटिंग वुमेन में. ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ये रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. इसीलिए ध्यान देते हैं ना प्रेग्नेंट वुमेन को कि बहुत आयरन रिच खिलाओ, पत्तों वाली हरी चीजें खिलाओ. कहीं कहीं पे हरी चीजें ही बंद कर देते हैं कि बच्चे को हरी पॉटी हो रही है तो हरा चीज मत खिलाओ. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, अगर बच्चे को हरी पॉटी हो रही है तो इट मस्ट बी इन्फेक्शन. बच्चा, मदर सब कुछ खा सकता है जो कि एक हेल्दी चीज है. ठीक है, न्यूट्रिशन में उनकी कमी नहीं होना चाहिए. बस उनको प्रोसेस्ड फूड एंड ऐसी चीजें ना खिलाएं जिससे इन्फेक्शन हो मदर को. एंड अगर मदर को इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी है, तो ऑब्वियसली बच्चे को होगा. मदर के खाने से नहीं ट्रांसफर होती है वो चीजें. मदर को अगर सर्दी खांसी है, अगर बच्चे को वो कांटेक्ट में लेगी तो ऑब्वियसली उनका, क्योंकि ये ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो जैसे कांटेक्ट में आएगा तो उस तरह से होता है, ना कि मदर के खाने पीने से होगा. ओके, तो मदर को नॉर्मल हेल्दी डाइट देना है. इन केस ऑफ बच्चा को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो भी. मेक श्योर मदर को अच्छे से प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए. अगर लेस कुक होगा तो उससे भी इन्फेक्शन होता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है. ओके, तो फिर अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और बच्चे पे बुरा असर होगा. ओके, यहाँ पे एक और पीछे भी यही चीज डिस्कस किया है कि मेगलोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है डिफिशियंसी से. क्यों? क्योंकि रेड सेल्स ही नहीं बन रहे, WBC RBC प्रॉपर नहीं बन रहे. इस वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है और ये अनेमिया हो जाता है. ठीक है, तो अनेमिया होने से जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप आयरन रिच खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा. अगर विटामिन B12 भी डिफिशियंसी है तो भी अनेमिया ठीक नहीं होता है. B12, B6 दोनों ही मदर को देना होगा, इंक्लूडिंग आयरन एंड प्रोटीन, बिकॉज hemoglobin is combination of iron and protein. Heme, that means iron, and globin means protein. So we have to take protein and iron, both things. तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मिल्क, दाल एंड दाल प्रोडक्ट, नॉनवेज से, एंड
आयरन कहाँ से मिलेगा? एनीवन? लीफी वेजिटेबल्स, नॉन-वेज एंड एप्पल्स, पोमेग्रेनेट, इन सब चीजों में। और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जिनको हम काट के छोड़ दें और वो काली हो जाए तो दैट इज उसमें आयरन है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन में फोलेट डेफिशिएंसी काफी कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है। हम नॉर्मल रिक्वायरमेंट ही समटाइम्स पूरी नहीं कर पाते हैं एंड उनकी तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और जनरली प्रेग्नेंट वुमेन खा भी नहीं पाते प्रॉपरली से। काफी लोग वॉमिटिंग के प्रॉब्लम से सफर करते हैं, तो जनरली उनको डिफिशियंसी रहती है, तो उनको फिर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो शुरू से ही ध्यान रखेंगे अपनी डाइट का, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उनके हार्मोन्स ठीक रहेंगे और दे विल नॉट सफर फ्रॉम सो मच वॉमिटिंग एंड दिस थिंग। Aplastic anemia, inadequate folate intake is associated with poor pregnancy. 2. मेगलोब्लास्टिक होता है ना, लिप, कई बच्चों का आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे उठा कटा हुआ रहता है, ऐसे, है ना, तो सर्जरी से ठीक कराना पड़ता है, दैट इज क्लेफ्ट लिप। तो ये रिस्क होता है किससे? विटामिन बी डिफिशियंसी से। प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, लाइक अगर बच्चा, क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर बोलते हैं ना, तो ये चांसेस भी हो जाते हैं। लो बर्थ वेट, बच्चे का वेट कम हो सकता है। फीटल ग्रोथ कम हो सकती है। लो बर्थ वेट एंड फीटल ग्रोथ लाइक रिटार्डेशन हो सकता है, कम हो सकती है। फीटल मतलब फीटस का, बच्चे का। फीटस मतलब जब तक वो बच्चा पेट के अंदर है, इट इज कॉल्ड फीटस। बाहर आने के बाद उसको बेबी बोल सकते हैं। लो फोलेट status has been associated with an increased risk of colorectal cancer. कोलोरेक्टल मतलब कोलोन और रेक्टल के उधर का कैंसर। रेक्टल कहाँ है? एंड पार्ट ऑफ द एनस और कोलोन के बीच का पार्ट इज रेक्टल, जहाँ पे स्टूल स्टोर होता है, तो वहां पे कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। सो वी कैन से फोलेट इज वेरी एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ज्यादा होने से क्या होगा? An upper level of 1000 gram has been, यहाँ पे ग्राम होगा, has been prescribed, no, mg होगा, gram has been prescribed. There is, this is microgram, okay. There is probably no great risk of toxicity. Toxicity का कोई वैसा रिस्क नहीं है, जनरली नहीं होती है टॉक्सिसिटी ज्यादा खाने से भी। ओके, नाउ पेंटोथेनिक एसिड, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ विटामिन, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा डिफिशियंसी नहीं देखा गया है, ओके, क्योंकि ये बहुत इजीली खाने में मिल जाता है। नेक्स्ट इज बायोटीन। बायोटीन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। अगर फैट जो खा रहे हैं उसका हमको ऐसे ब्रेक डाउन करना है तो हमें बायोटीन भी चाहिए। वेरी स्मॉल अमाउंट आर रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट मे वेल बी मेड बाय बैक्टीरिया नॉर्मली इनहिबिटिंग द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया बैठा रहता है जो बायोटीन बनाता है। एग योक में भी आपको बायोटीन इजीली मिल जाएगा एंड नॉन वेजिटेरियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी इजीली मिलता है, तो बायोटीन डिफिशियंसी बहुत कम देखने को मिलती है। नाउ विटामिन सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, योर लाइक WBC।
होगा, रेनी सीजन आएगा तो क्या होता है, सर्दी खांसी होती है। तो अगर विटामिन बीमारी से अभी जैसे सीजन चेंज है, लाइक एवरी डे यू आर मीटिंग योर रिक्वायरमेंट, देन आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। Ascorbic acid is a vitamin C. It is a name of vitamin C actually, also known as anti-scurvy vitamin. Anti-scurvy क्यों, ये ऐसे ही जस्ट नाम रख दिया, क्यों, क्योंकि स्कर्वी से बचाता है। स्कर्वी इज अ डिजीज जो कि विटामिन सी नहीं खाने से होता है या कम खाने से होता है। इट्स केमिकल नेम इज ascorbic acid and ascorbate. It is a derivative of carbohydrate. Food sources of vitamin C include rich sources क्या है, आंवला, guava, oranges, okay, and lemon is very rich in vitamin C, okay. तो good sources में क्या है, drumstick leaves, leafy vegetable, fruits such as melons, okay, melons means muskmelon, berries, pineapple and tomatoes is also good sources of vitamin C. Fair sources ठीक ठाक किसमें मिलेगा, apple, banana, mangoes is also good source of vitamin C. Vitamin C is found in many fruits and vegetables. Citrus fruit and juices are particularly rich in sources of vitamin C. हम शॉर्ट में बोल देते हैं ना, खट्टे फल खा लो, खट्टे फल जो भी है, तो ऑरेंज, मौसमी, इन सब में अच्छे से विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ खट्टे फल में ही होगा, ये मीठे फल में भी होता है। गुआवा इज नॉट खट्टा फल बट इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन सी। Mangoes is also good source. Here is written, see, mangoes, papaya, strawberries, tomatoes and watermelon also contain variable amount of vitamin C. So अगर हम fruits and vegetable every day खा रहे हैं तो हमारी requirement fulfill हो जाएगी, in short. Beans, sprouts, cauliflower, mustard greens, okay, mustard greens मतलब सरसों के पत्ते, red and green peppers, peas and tomatoes, potatoes may be more important sources of vitamin C than fruits, given that the vegetable supply often extend for longer period during the year than does the fruit supply. ये just वो बोला है कि आपको potatoes तो साल भर मिल जाता है ना, so it is easy source. Vitamin C content of food is insufficient, influenced by season, है ना, सीजन के थ्रू चेंज होते रहते हैं, क्योंकि किसी सीजन में हमें विटामिन सी रिच ज्यादा फ्रूट मिलते हैं, लाइक विंटर्स में ज्यादा हमें विटामिन सी रिच फ्रूट मिलता है, तो उससे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। Cutting or brushing of produce releasing ascorbate oxidase. Blanching inactivates the oxidase enzyme and helps to preserve ascorbate. Heating and exposure of copper in iron or in alkaline condition destroy the vitamin. Alkaline condition में अगर हम डालते हैं तो ये destroy हो जाता है विटामिन। लाइक अगर हम उसको किसी ब्रास के मेटल में डालेंगे ना, ब्रास में आप नींबू पानी बनाइए तो क्या हो जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कल्चर ही चेंज हो जाता है। तो हमें अल्कलाइन, जहाँ पे जैसे हम अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं, अल्कलाइन वाटर बनाते हैं ना हम तांबे के बर्तन में रख के या फिर मिट्टी के बर्तन में रख के हम अल्कलाइन वाटर बनाते हैं। तो अगर हम अल्कलाइन किसी मटेरियल में कर रहे हैं कोई चीज एंड उसमें हम फिर एसिडिक भी डाल रहे हैं तो विटामिन सी का कल्चर टूट जाएगा और वो अपना कैरेक्टर खो देगा, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन तो हो सकता है लेकिन स्टोरेज नहीं होगा विटामिन सी, बिकॉज इट इज अ वाटर soluble, right? Ascorbic acid is absorbed from the intestine primarily by active transport.
Simple diffusion contributes a small extent of its absorption from the mouth and stomach. Okay. It passes through the portal vein to the general circulation and to all tissue. Each organ or tissue has an optimal saturation level of ascorbic acid. जो भी organ है उनके अलग अलग quantity of ascorbic acid available है body में. It is not stored to any appreciable extent in the body. ये store नहीं होता है, ठीक है, हल्का फुल्का होता है, लेकिन वो अगले दिन उसको चाहिए ही next requirement. An unabsorbed vitamin C may be metabolized by the intestinal flora. Pectin and zinc are a few substances that impair its absorption. Excess is excreted in urine. Okay, जिंक वाला फूड के साथ अगर हम विटामिन सी वाला फूड खाएंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा स्टूल के थ्रू, और जो हमारा एक्सेस जो नहीं हमने एब्जॉर्ब किया वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा. एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, दैट मीन्स हमने एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन अब हमें उसका जरूरत नहीं है, हमने उसको स्टोर नहीं किया, हम क्योंकि स्टोर नहीं कर सकते, तो अब हमको किडनी के थ्रू क्या होगा, वो यूरिन बन के निकलेगा. ओके, तो इस तरह से ये कुछ पार्ट यूरिन के थ्रू ही निकलता है. फंक्शन ऑफ विटामिन सी, क्या काम है, बहुत सारा काम है विटामिन सी का. ओके, एंजाइम फंक्शन, एक एंजाइम की तरह काम करता है. ओके, प्रोएक्टिव रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट में सबसे आगे लीड का काम करता है. लाइक कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट, कुछ भी लाइक पॉइजनस फूड, पॉइजनस थिंग हमारा अगर ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो ये एंटीऑक्सीडेंट जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं एंड उसको ऑक्सीडाइज को एंटीऑक्सीडाइज करता है. सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स का सिंथेसिस करने में इसका रोल है. फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इंटरसेल्युलर सीमेंट सब्सटेंस, सेल्यूलर के बीच में, सेल्स के बीच में एक सीमेंट सब्सटेंस बोलते हैं जो उनको जोड़ने का काम करता है, वो भी कौन फॉर्म करता है, विटामिन सी. हम कोलेजन वर्ड आपने सुना होगा, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, जो स्किन में कोलेजन चाहिए होता है ना, क्यों, क्योंकि दो सेल को अच्छे से वो लाइक इंटैक्ट करके रखता है. सो विटामिन सी अच्छा होने से आपकी स्किन भी अच्छी होगी. एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्लाज्मा आयरन इन फेरिटीन, कॉमन फीचर. अब से आप थोड़ा ध्यान रखिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें देखिए कि क्या क्या है इसमें, विटामिन सी है क्या, विटामिन, आप क्या खा रहे हैं, तो अगर आप मैंगो खा रहे हैं तो देखिए, आप ऐसे बोलिए कि मैं विटामिन ए खा रहा हूँ, मैं विटामिन सी खा रहा हूँ, बच्चों से या अपने फैमिली मेंबर से आप इस तरह से उनको बताएंगे तो आपको भी दिमाग में बैठेगा. लाइक माय किड्स नो कि हम ये खा रहे हैं, दैट मीन्स मेरे में ये चीजें जा रही हैं. तो दिस इज अ गुड थिंग कि उनको पता रहे कुछ क्या, तो क्या लैकिंग जा रहा है, तो दे मे टेक दैट थिंग. Now here bone formation में भी ये जरूरी है. Ascorbate is a vital for bone formation. In deficiency, though, calcification is ineffective. Calcification क्या होता है? Calcification एक ऐसा प्रोसेस है जो रिपीटेडली होने से बोन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मान लीजिए ये एक बोन है, अब इसके ऊपर लेयर बनती जाएगी, कैल्शियम चढ़ता जाएगा, दैट इज कैल्सिफिकेशन. और इसी तरह होके बोन का फॉर्मेशन होता है. जब बच्चा होता है छोटा तो उनका कैल्सिफिकेशन इसी तरह से होता है. उस टाइम विटामिन सी बहुत जरूरी होता है. एंड लेटर ऑन हमें उतना ज्यादा फॉर्मेशन नहीं करना है, तो बड़े होने के बाद इसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है. Ascorbate is vital for bone formation in deficiency, though calcification is unaffected.
Formation of bone matrix and ground substance is defective. Osteoblast invading the area of calcification change histologically into fibroblast. The bone matrix is abnormal as it lacks ossification. Ossification is kind of like calcification. Wound healing. Wound healing, ascorbic acid deficiency delays healing of wound. अगर हम विटामिन सी डिफिशिएंट है और हमें कहीं कट लग गया है या घाव हो गया है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा बिकॉज वी आर लैकिंग इन विटामिन सी. तो हमें विटामिन सी चाहिए जल्दी से उसको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और वुंड को ठीक करने के लिए. Vitamin C plays a protective and curative role in diseases resulting from atherosclerosis through its effect on cholesterol metabolism. It protects low-density lipoprotein against oxidation. ये low density lipoprotein नहीं बनने देता. That means ये good cholesterol बनाता है. अगर आपकी बॉडी में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है लाइक LDL है या फिर VLDL है तो ये उसको कम करता है, वो उसको नहीं बनने देता एंड ये HDL को बढ़ाता है. तो अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल खराब है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल खराब है, दैट मीन्स तो उसको विटामिन सी भी खाना पड़ेगा. तो आप उस पेशेंट को अगर मील दिन भर की मील में एक मील अगर फ्रूट का दे देंगे एवरी डे इफ इज हैविंग तो उनका डेफिनेटली विटामिन सी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा. बट मोस्टली जो डाइट फॉलो नहीं करते, जो डाइटिशियन को फॉलो नहीं करते, जो कंसल्ट ही नहीं करते, उनका आप जनरली डाइट देखेंगे कि वो फ्रूट को एक बहुत लाइटली वे में लेते हैं बट राइस को कभी लाइटली वे में नहीं लेते कि राइस तो खाया ना, राइस तो खाया, बट फ्रूट खाया कि नहीं, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट. The ICMR recommendation is 40 mg per day for both adult male and female. दोनों को ही सेम चाहिए. The requirement go up by another 40 mg during lactation. Lactation में बढ़ जाता है. Okay, now it is time to end. कुछ क्वेरी है. आज विटामिन सी का किसने क्या क्या खाया मुझे बताइए in 1 minute. Lemon, orange, mango. Oh, that's good. That means you have completed 40 mg for today. And you have stored vitamin A for you tomorrow also. Oh, okay, mom. So you can enjoy your fruits. You must enjoy seasonal fruits every day. Okay, मैम लेमन जूस पाल से बहुत पसंद है. इस टाइम में पाल से आते हैं पाल. Lemon juice. लेमन वाटर पिया है पूरे दिन. Okay, lemonade. Okay. एंड जो लेमनेड पी रहे हैं या लेमन जूस डाल के जो लेमनेड बना रहे हैं वो क्या शुगर डाल रहे हैं उसमें? नो मैम. मैम कभी शुगर कभी बिना शुगर और नमक के. ओके. अगर आपका वेट नॉर्मल है देन इट इज ओके. अगर जरा सा भी ओवरवेट है तो कोशिश करिए शुगर को मिनिमाइज करने का बिकॉज लेमन इज गुड लेकिन आप अगर शुगर इतना डालेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ.
क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी कार्ब स्टोर्ड है, हम उसको यूज कर सकते हैं। हमें बाहर से आते हैं तो जनरली बच्चों को लोग क्या करते हैं, फटाफट ग्लूकोज दे दो या कुछ शरबत दे दो ताकि एनर्जी आए, लेकिन बॉडी में ऑलरेडी है एनर्जी, वो यूज करेगा बॉडी उसको। You have to give just other things, other vitamins and minerals, and fruits में already sufficient amount of fructose होता है। तो एडिशनली शुगर को अवॉइड करिए, कोशिश करिए महीने का हिसाब रखिए शुगर का कि आपका महीना में कितना शुगर जा रहा है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 250 ग्राम इज मोर देन एनफ। कोशिश करिए उसको लिमिट करने का। मैम गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स, इनका जो शेक बना के पीते बिना शुगर के अच्छा ही नहीं लगता। नींबू और शुगर डालते तो बड़ा टेस्टी लगता है ये। तो आप कुछ रेसिपी चेंज कर दीजिए। मैं भी बनाती हूँ चिया सीड्स, बेसिल सीड्स का शेक्स बनाती हूँ। तो समटाइम्स मीठा खाना है तो मैं कुछ डेट्स डाल देती हूँ, लाइक मिल्क रहता है उसमें, चिया सीड्स रहता है एंड कुछ नट्स रहते हैं, सीड्स रहते हैं। तो मुझे अब आदत हो गई है विदाउट शुगर खाने का। एंड समटाइम्स अगर थोड़ा मीठा खाने का मन है, अगर मेरा थोड़ा लेट शेड्यूल हो गया है, लंच स्किप हो रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा डेट्स डाल देती हूँ। तो डेट्स अच्छा ऑप्शन है, डेट्स ही ठीक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं अभी। गुड नाइट एवरीवन। Okay, ma'am. गुड नाइट मैम। Good night, ma'am. इतना ना